Hello everyone, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalda. Now, our next topic is chemical properties of group 14 elements that is known as carbon MD. और इसमें सबसे पहली चीज जो है हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. We know group 14 have 5 elements: carbon, silicon, germanium, tin, lead, and the general outermost shell electronic configuration of group 14 elements is NS2, NP2. All the group 14 elements have 4 electrons in their outermost shell. So, they have tendency to lose these 4 electrons. They have tendency to use these 4 electrons for the bond formation. And common oxidation state क्या होगी हमारे पास? Common oxidation state of group 14 elements will be +4. But as we move down the group, due to increasing atomic size, a pair of electrons present in s atomic orbital reluct to participate in bond formation. आउटरमोस्ट शेल के s atomic orbital में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका जो ये पेयर है, इट रिलक्ट टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा. तो जब ये मना करेगा तो उस समय में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ पी वाला. पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो उस समय क्या होगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बिकम पॉसिबल. अरे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई है? इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ये किस वजह से है? इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो होगा क्या? जैसे जैसे हम कार्बन से लेड की तरफ मूव करेंगे, कार्बन टू लेड जैसे जैसे मूव करेंगे, द टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट will increase and tendency to show +4 oxidation state will decrease, and +2 oxidation state will become more stable than +4 oxidation state. तो +2 oxidation state +4 के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हो जाएगी. and therefore एग्जांपल भी देखें, PbCl2 become more stable than PbCl4, and SnCl2 becomes more stable than SnCl4. This is due to inert pair effect. Next is reactivity towards oxygen. Second chemical property is reactivity towards oxygen. इस ग्रुप के एलिमेंट्स जिस समय ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ग्रुप 14 एलिमेंट्स react with oxygen to form 2 types of oxides. One is monoxide and the second one is dioxide. Monoxides have formula EO and dioxide have formula EO2. E is any element of group 14. For example, यदि मैं कार्बन बोलूं, EO क्या है? This is monoxide, and EO2 क्या है? That is the dioxide. For example, यदि E की जगह मैंने कार्बन ले लिया तो CO, CO2, CO is carbon monoxide and CO2 is carbon dioxide.
अब इन दोनों की बात करें, CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। Out of these two oxides, out of these two types of oxides, the oxides having higher oxidation state of element is more acidic than the oxides having lower oxidation state। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस ऑक्साइड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन लेवल हाई है, वो ज्यादा एसिडिक होगा दूसरे की बजाय। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास PbO है, एक PbO2। यदि PbO की बात करूं तो PbO में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ है? PbO2 में। सो PbO2 इज मोर एसिडिक देन PbO। PbO2 जो है मोर एसिडिक है देन PbO। क्लियर? नेक्स्ट इज reactivity towards water और वाटर के साथ रिएक्शन। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, वो तो वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते। while tin react with water to form dioxide, tin जो है वो वाटर से रिएक्शन करेगा। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते। tin react with water to form dioxide, तो tin ने क्या करना है? इट फॉर्म्स डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? SnO2। तो रिएक्शन क्या होगी? Sn when react with water, it will react with the two water molecules। तो यहां से दो ऑक्सीजन Sn के पास जाएंगे, SnO2, और चार हाइड्रोजन बचे वो क्या बनेंगे? टू मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब बचा है लेड के बारे में। lead is unaffected by water due to formation of oxide layer on its surface। जैसे एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, वैसे ही सेम लेड जो है, लेड के ऊपर जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, लेड ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी और उसके बाद ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज, reactivity towards halogen, halogen mean H2, F में भी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बट फ्लोरीन की सेपरेशन बहुत कम पाई जाती है। तब होगा क्या? इस ग्रुप के एलिमेंट्स जब हेलोजन साथ रिएक्शन करेंगे तब वो क्या बनाएंगे? ऑल द ग्रुप फॉर्मिंग एलिमेंट्स react with the halogens to form two types of halides
One is dihalides, formula EH2, and second क्या है tetrahalides, फॉर्मूला है EH4. डाइहैलाइड्स बनाएंगे EH2 टाइप, ट्राइहैलाइड बनाएंगे, टेट्राहैलाइड बनाएंगे EH4. फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने E क्या करा, E की जगह C लिख दिया और हैलोजन ले लिया हमारे पास, सॉरी E की जगह मैंने SN ले लिया और हैलोजन ले लिया Cl, तो SnCl2, SnCl4. tin dichloride, tin tetrachloride. In EH4 category, the hybridization of element is sp3 और ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. अब यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हम EH4 कैटेगरी की बात करें, एग्जांपल ले रहे हैं CCl4. क्वेश्चन है CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इजीली विद वाटर while all the other tetrahalides or group protein elements gets easily hydrolyzed. यानी कि CCl4 वाटर से रिएक्शन नहीं करता जबकि बाकी सारे करते हैं. क्वेश्चन इज CCl4 cannot be hydrolyzed easily with water while all the other tetrahalides can easily hydrolyze. All the other tetrahalides of group protein elements can easily hydrolyze. CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता जबकि बाकी सारे हाइड्रोलाइज होते हैं. तो हाइड्रोलाइज होने का मतलब क्या है, वाटर से रिएक्शन करना और कंपाउंड के बीच के बॉन्ड ब्रेकअप होना. तो आप जरा देखिएगा, in case of CCl4 the center atom is carbon, and if we study the electron configuration of carbon, then its ground state electron configuration is 1s2 2s2 2p2, and in excited state उस समय में क्या होता है, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है. उस समय में क्या बनता है, 1s2 2s1, 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन गया है 2py1 और क्या बनेगा 2pz1. बट हम यहां देख रहे हैं कि इन केस ऑफ कार्बन 2d कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. जब हमने ऑक्यूट प्रिंसिपल पढ़ा या हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा तो हमने पढ़ा फर्स्ट शेल के अंदर ओनली वन एटॉमिक ऑर्बिटल वन सब शेल होता है. सेकंड शेल में 2 सब शेल है 2s एंड 2p. वहां 2d एग्जिस्ट नहीं करता. इट मींस absence of vacant d atomic orbitals in case of carbon. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बन के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, खाली नहीं पड़े हैं. अब यदि मैं कोई और एलिमेंट उठाऊं, मान लो मैंने उठाया सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. अब यदि हम यहां देखें तो आउटरमोस्ट शेल कौन सा शेल है, थर्ड शेल. और क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग थर्ड शेल में 3 सब शेल पॉसिबल है, s p and d, 3s 3p 3d. इसका मतलब यहां d एटॉमिक ऑर्बिटल में इस समय इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इस शेल के अंदर वो वाला सब शेल यानी कि 3d सब शेल वेकेंट पड़ा है, यानी कि उसके एटॉमिक ऑर्बिटल खाली पड़े. ठीक है, इट इज हैविंग वेकेंट 3d एटॉमिक ऑर्बिटल स्पेस.
सो आप क्या बताएंगे इन केस ऑफ कार्बन vacant d atomic orbitals are absent, while in case of all the other group 14 elements vacant d atomic orbitals are present. सो इन vacant atomic orbital पड़े होने से होगा क्या और इनके absent होने से क्या होगा? Whenever all the tetrahalides or group 14 elements react with water, then the Cl atom will be replaced by the OH negative group, and oxygen is having lone pair of electrons. तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा जुड़ने के लिए, तो उनके पास यदि वेकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ऑक्सीजन की ओर प्रेजेंट है उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे जुड़ने के समय पे, और जब एक्सेप्ट होंगे तभी वो जाके इसके साथ जुड़ पाएगा, जबकि यदि अब्सेंट ये वेकेंट डी ऑर्बिटल अब्सेंट होंगे तो ये नहीं जुड़ पाएगा, तो ये नहीं जुड़ पाएगा। तो आप रिएक्शन से देखिएगा क्या होना है। जैसे सपोज करो मैंने अभी आपको बताया SiCl4, हम यहाँ 4 वाटर सेलेक्शन कर रहे हैं, तो यहां से Cl बाहर निकलने हैं और OH नहीं आना है, ऐसा ही इस टाइप से बनना है। और CN बाहर निकालेंगे, लेकिन CCl4 के अंदर कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, so it cannot accept electron pair present on the oxygen atom in OH group. So accept नहीं कर पाएगा तो bond formation नहीं होगी, so no reaction. So we will say that CCl4 cannot be hydrolyzed with water due to absence of vacant d atomic orbital in case of कार्बन। तो कार्बन के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इस वजह से ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, एंड इट cannot accept electron pairs present on oxygen atom during bond formation. तो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो ऑक्सीजन एटम के ऊपर लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई CCl4 cannot be hydrolyzed easily with water. Our next topic is anomalous behavior of carbon element. कि कार्बन एलिमेंट का anomalous behavior, कि कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में पाए जाने वाले बाकी मेंबर से डिफरेंट है, दिस इज कॉल्ड anomalous behavior। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कि उसके एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े और वो लीनियर चेन्स बना सकें, ब्रांचेस बना सकें या रिंग्स बना सकें, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो व्हाट इज कैटिनेशन? द सेल्फ लिंकिंग property of any element due to which the atoms of that element combine to form linear chains, branches और rings, कब? जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, when linked with each other by single bond। तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े, लंबी चेन्स बनाए
तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कार्बन के बारे में। कार्बन एलिमेंट हैज maximum tendency to show catenation। कार्बन एलिमेंट में क्या है? कैटेनेशन शो करने की मैक्सिमम टेंडेंसी है, while all the other group protein elements has less tendency। तो ध्यान रखिएगा इसका रीजन क्या रहना है कि जिस एलिमेंट में मैक्सिमम टेंडेंसी है उस एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड जो है दूसरे के मुकाबले में क्या होगा? मोर स्टेबल। इट मीन्स उसके सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दूसरे से हाई होगी। तो आप यहां देखिएगा, आप बताएंगे दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट सीसी बॉन्ड, क्योंकि कार्बन शो कर रहा है सीसी बॉन्ड is more stable due to its high bond dissociation energy। और कितनी है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सीसी बॉन्ड की? 348 किलोजूल पर मोल। इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 348 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी to show continuation, but as we move down the group, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज इंक्रीज होने से, but as we move down the group due to increase in size of atom, एटम का साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ई बॉन्ड विल डिक्रीज। बॉन्ड एनर्जी ई बॉन्ड की क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड स्टेबिलिटी ऑफ ई बॉन्ड विल आल्सो डिक्रीज। Stability of E bond will also decrease, and as a result, tendency to show catenation will also decrease. So catenation show करने की tendency है वो भी decrease करेगी। Even कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम टिल लेड, यदि हम जाते जाए तो नीचे टेंडेंसी ऑफ शोइंग कैटेनेशन और डिक्रीज। और सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है? लेड। लेड जो है इट डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। लेड एलिमेंट है वो तो कैटेनेशन शो ही नहीं करता, यानी कि पीबी सिंगल बॉन्ड पीबी, इस तरह से वो लीनियर चेन के ब्रांचेस नहीं बनाता, ना रिलीज बनाता। सेकेंड इज द, ये पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, students, we have already studied that there is two types of covalent bond. One is sigma bond, second is pi bond. Sigma bond is formed by the 3 types of overlapping: SS overlapping, SPZ overlapping, and PZ overlapping. While the pi bond is formed
But there are two types of overlapping. One is PS overlapping and second is a PY overlapping. तो जो p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग है, कार्बन एलिमेंट जो है, इट हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi मल्टीपल बॉन्ड, कि ये पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड बनाते समय इसके कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होंगे? p एटॉमिक ऑर्बिटल. सो कार्बन एलिमेंट हैज एबिलिटी टू फॉर्म p-pi multiple bond with itself. ये कार्बन कार्बन आपस में भी बना सकते हैं एंड विद एटम्स ऑफ अदर स्मॉलर एलिमेंट्स या अदर एलिमेंट्स with small size and high electronegativity. स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अदर एलिमेंट्स के साथ बनाता है p-pi बॉन्ड. कैसे? आप जरा देखिएगा. फॉर एग्जांपल, कार्बन दूसरे कार्बन से बना मिला, डबल बॉन्ड बना दिया या ट्रिपल बना दिया. तो हम जानते हैं डबल बॉन्ड में वन बॉन्ड इज सिग्मा, सेकेंड इज पाई. ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा है और टू पाई बॉन्ड्स है. और पाई बॉन्ड्स बनाने के टाइम पे इस कार्बन का भी कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यूज हुआ है? p. और इस कार्बन का भी कौन सा यूज हुआ है? p. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग. ये तो कार्बन से बात थी. अब ये ऑक्सीजन साथ भी जुड़ सकता है, C डबल बॉन्ड बनाता है. सल्फर साथ भी जुड़ता है, C डबल बॉन्ड S. नाइट्रोजन साथ भी जुड़ता है, C ट्रिपल बॉन्ड N. इस तरह से ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ जुड़ के पाई बॉन्ड्स बना सकता है. और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जिन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है उन दोनों एटम का ही p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा. उन दोनों एटम का p एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगा. हाउएवर, other elements of this group do not have ability to form p-pi multiple bond. Reason क्या है? Because their atomic orbitals are too large, इतने बड़े होते हैं, and they are diffused to have effective overlapping. तो उनका साइज इतना ज्यादा डिफ्यूज होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल डांस होने के इतने डिफ्यूज होते हैं कि उनके अंदर ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, और ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. इसी वजह से बाकी एलिमेंट जो हैं इस ग्रुप के वो p-pi मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते. दिस इज ऑल अबाउट अनोमलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन एलिमेंट. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share, comment my video and subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalda.